जब आपने ऐसे नहीं सोचा कि मतलब ये कोर्स थोड़ा टफ हो सकता है मेरे लिए, बिकॉज आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था एआई का, राइट? आप तो बैंक में काम कर रहे हो। बैकग्राउंड तो है नहीं, लेकिन पहले मैंने सिलेबस देखा अच्छे से। राइट, आई ओके। वेंट थ्रू द सिलेबस, अच्छे से देखा सिलेबस में क्या है। और उस मुझे पता चल गया था कि इसमें इसमें मोस्टली एआई। बहुत मिथ है मार्केट के अंदर कि अगर आपको गार्प का आरआई करना है करेंगे तो आप कोडिंग सीख जाओगे या कोडिंग आपको आनी चाहिए। क्या लग रहा है, क्या सच है उसमें? नहीं, इसमें जीरो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। कुछ कोडिंग, इनमें कोडिंग तो सिखाता नहीं है बिल्कुल। देयर इज जीरो कोडिंग। एग्जाम की तरफ देख रहे हैं, बट उनका एक जो फियर है ना कि अरे मैंने कभी एआई के बारे में पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं, क्या मैं कर सकता हूँ? बिकॉज अभी आपने क्लियर किया है तो आपका एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड इट, राइट? Even if you have zero knowledge about AI, you can also clear this exam by studying. आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो कहीं अटक रहे थे, मतलब कहीं आप स्टक हो गए, अरे ये समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे कर रहे थे उसको, टैकल कैसे किया? तो मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज मेरा स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड, मतलब लास्ट टाइम आई रेड स्टैटिस्टिक्स ड्यूरिंग माय एमबीए कोर्स, सो उतना मेरा स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड है नहीं। 80 क्वेश्चंस करने के लिए 4 आवर्स ये जो टाइम है, ये सफिशिएंट लगा आपको? मेरा 2.5 hours में हो गया। 3 टिप्स दे सकते हैं ऑन हाउ यू क्लियर द एग्जाम। मैं एक ही टिप दूंगा विच विल बी वेरी यूजफुल, विल बी गोइंग फॉर द एग्जाम्स। Hello guys, I hope everybody is doing good. Hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students preparing for competitive exams in finance like CFA, FRM, and SCR. And today I'm with Rajdeep. He's already my FRM student and he's now cleared the RAI exam, which is the GAR Risk and AI exam. So I thought हम बात करेंगे कि कैसा था exam, what are the challenges, how he managed to clear, how was the actual exam day. So just to guide students who are going to go for these exams in the future. So I thought let's have a quick conversation with him. So Rajdeep, if you can give us a brief about you before we start the conversation. Sir, it's been 10 years I am working in banking and financial field. I started with private sector bank, then shifted to a public sector bank, and it's been 8 years and few months since I've been working with public sector bank. And I was always interested in risk domain. Even I work in a branch banking, retail banking, and branch Okay. banking retail, but I was always interested in this niche risk domain. So I thought of upgrading myself. FRM is always in my forte. I always wanted to do FRM, but before getting into FRM, I thought let's do a short course which will give me a feel. कैसा रहेगा? That which will give me feel how the FRM is going to be and how the GARP question structures are. So Okay. instead of directly jumping into FRM, which is a two-part exam, I thought let's give a one-part exam which will also upskill myself and which will also give me a feel of the exam, because it's been quite a while since I have prepared for a global certification exam. So that is the reason I chosen RAI over FRM. I thought I would complete RAI first, and then I'll jump into FRM preparation, which is a bit longer and lengthy preparation. ओके, बिकॉज जनरली जो मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं ना कि एफआरएम हो गया, सीएफए हो गया, उसके बाद दे प्रेफर एड ऑन लाइक आरएआई। जनरली ऐसे वर्क करता है। आपने थोड़ा-सा उसको अलग किया बिकॉज़ अभी आप एफआरएम देने वाले हो इन द नियर फ्यूचर, करेक्ट? Yes, तो yes, yes, yes. ये जब आपने ऐसे नहीं सोचा कि मतलब ये कोर्स थोड़ा टफ हो सकता है मेरे लिए, बिकॉज़ आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था एआई का, राइट? आप तो बैंक में काम कर रहे हो। बैकग्राउंड तो है नहीं, लेकिन पहले मैंने सिलेबस देखा अच्छे से। राइट, आई ओके। वेंट थ्रू द सिलेबस, अच्छे से देखा सिलेबस में क्या है। और उस मुझे पता चल गया था कि इसमें इसमें मोस्टली एआई is also there teaching you AI some part, but it's mainly about data and governance driven. So इसीलिए मैंने सोचा कि if it is data and governance driven, so let's get into this first. So इसमें मुझे तो, ओके। क्योंकि after once you see the syllabus, you'll have a feel that ये सिर्फ AI नहीं सिखा रहा है. This is not about nuances of AI. It's about the governance, data regulations. What is the risk part of the AI, not the core AI, which engineer or prompt करेक्ट। engineering. Prompt engineering is also a part of it, but that is not the major portion which other Gen AI courses are offering.
तो इस कोर्स में अभी एक बहुत मिथ है मार्केट के अंदर कि अगर आपको गार्प का आरएआई करना है करेंगे तो आप कोडिंग सीख जाओगे या कोडिंग आपको आनी चाहिए। क्या लग रहा है, क्या सच है उसमें? नहीं, इसमें जीरो देयर इज नथिंग लाइक दैट। कुछ कोडिंग इनमें कोडिंग तो सिखाता नहीं है बिल्कुल। देयर इज जीरो कोडिंग। एंड आप एआई तो से नहीं सीखोगे। यू विल दे विल टीच यू व्हाट इज द एआई इज मोस्टली डेटा ड्रिवन। अब आप अगर एआई को डेटा नहीं दोगे, आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं दोगे, तो एआई कुछ नहीं कर पाएगा। only if you give ओके, a context, then only AI will be able to perform. तो यहाँ पे करेक्ट, सिखा रहा है, if you are obtaining the data should be ethical. If you are doing with something with the AI, there should be someone who will be supervising on it. So that is there, sir. That is the main outlook of the exam, not the AI core AI. That is not there. करेक्ट। तो जब आपने इनिशियली करिकुलम देखा, तो आपको ये समझ में आ गया कि भले ही मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का नहीं हूँ या मेरा कोई एआई का नॉलेज नहीं है, स्टिल आई कैन क्लियर द एग्जाम। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे Yes, sir. बैंकर्स है, Yes. बहुत सारे जो बैंकर्स अपने पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में, वो भी एग्जाम की तरफ देख रहे हैं, बट उनका एक जो फियर है ना कि अरे मैंने कभी एआई के बारे में पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं, क्या मैं कर सकता हूँ? बिकॉज अभी आपने क्लियर किया है, तो आपका एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड इट, राइट? यस है। तब मैं तो बोलूंगा कि इफ यू हैव जीरो नॉलेज अबाउट एआई, यू कैन ऑल्सो क्लियर दिस एग्जाम by studying by over the 3-4 year months preparation. You can start from scratch, और आप एरिया आप धीरे धीरे डेवलप करके आप कर सकते हो। इसमें वैसा एआई का प्रायर नॉलेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। परफेक्ट। अब जो करिकुलम है वो अराउंड 5 मॉड्यूल्स में बाइफरकेटेड है, ओके? और जो मिडल सेकंड यस मॉड्यूल है उसमें अराउंड 10 चैप्टर्स है। तो जब आप प्रेप कर रहे थे, ओके, सर। तो पहले तो आपने डेली कितना टाइम दिया और कौन सा मॉड्यूल आपने ज्यादा फोकस किया या कौन सा मॉड्यूल आपको टफ लगा पढ़ते वक्त? मैं डेली 1.5 से 2 घंटा देता था। उस 2 घंटे दे पाता था, उससे ज्यादा मैं नहीं दे पाता था। दैट वाज बट आई वाज रेगुलर इन प्रिपेयरिंग। मैं 2 घंटा देता ही था। मॉड्यूल तो डेफिनेटली टफ। जो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द एआई है, जो एनएलएम है, जो सिखा रहा है, लार्ज एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स, सो वो थोड़ा टफ लगा। बट मैंने जब एग्जाम दिया, उसके बाद मुझे पता चला फिफ्थ एंड सिक्स मॉड्यूल जो है, जो कि मेनली थियरी बेस्ड है, मेजर चंक ऑफ द क्वेश्चन केम फ्रॉम दैट दोज 2 चैप्टर्स। फोर्थ एंड द फिफ्थ मॉड्यूल? फोर्थ एंड फिफ्थ मॉड्यूल्स में ज्यादा एग्जाम्स है, ज्यादा क्वेश्चंस है दोनों ओके, ओके। दोनों और में। इसमें कैलकुलेशन है क्या एग्जाम में, ये पेपर में? कैलकुलेशन नहीं है सर। कैलकुलेशन कैलकुलेशन दो दो या एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कैलकुलेशन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। और बाकी गाल गार आपको एक्सपेक्ट नहीं करता आप इसमें कैलकुलेटर लेके जाए। आप एग्जाम में एक कैलकुलेटर रहता है जो कि सिस्टम में रहता है, आपके कंप्यूटर में रहता है, विच यू आर एक्सपेक्टेड टू यूज ड्यूरिंग योर एग्जाम। एंड एंड इट इज नॉट हेविली कैलकुलेशन ड्रिवन एग्जाम। मेरा एंटायर पेपर में शायद एक ही क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। सो कैलकुलेशन इसमें ओके। बिल्कुल नहीं है, मेनली थ्योरी। और फॉर्मूलाज कुछ याद रखना ही नहीं है, मतलब फॉर्मूलाज ये सब कुछ नहीं है याद रखना? फॉर्मूलाज नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है सर। ये पूरा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है मेनली। हम्म। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे फॉर्मूलाज, थोड़ा तो स्टैटिस्टिकल पार्ट है जहाँ पे आपको फॉर्मूलाज याद नहीं रखने हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज याद रहेंगे, इफ यू नो द फॉर्मूला, देन ओनली विल बी ओके, एबल टू आंसर द थियरी पार्ट। इट्स लाइक दैट। ओके, तो ओके, ओके। और आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो कहीं अटक रहे थे, मतलब कहीं आप स्टक हो गए, अरे ये समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे कर रहे थे उसको, टैकल कैसे किया? इसमें थोड़ा स्टैटिस्टिकल का अगर प्रायर बैकग्राउंड अगर रहेगा, थोड़ा सा, इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, तो आपको ज्यादा आसानी होगा टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स। तो करेक्ट। मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज मेरा स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड, मतलब लास्ट टाइम आई रेड स्टैटिस्टिक्स ड्यूरिंग माई एमबीए कोर्स, सो ओके, उतना मेरा स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड है नहीं। सो आई वेंट बैक टू माई स्टैटिस्टिक्स बुक्स, एंड मैंने थोड़ा ब्रश अप कर लिया। So once I brushed up those statistical concepts, so everything went smooth, very smooth, और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके। तो क्योंकि उसमें जब आप पढ़ते हो पूरे करिकुलम में, तो उन्होंने रिग्रेशन के बारे में बताया हुआ है, लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का थोड़ा सा रेफरेंसेस है। तो आई थिंक सो वहां से ये कनेक्ट आपका बैठ रहा है कि हाँ, मुझे थोड़ा स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, तो दैट आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड द एआई प्रॉपर्ली, करेक्ट?
if someone is having statistical background or little bit of basic understanding of the statistics, he or she will always have an upper hand over someone who is completely new to the statistics. अगर लेकिन फिर भी अगर किसी को स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी नहीं पता है, you can always study a little bit of basic statistics and get into the exam. It will not be that difficult for them as well. ओके। और जब करिकुलम आप पढ़ते हो, उसमें बहुत जगह पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं मॉडल्स के कि वो कैसे वर्क कर रहा है। तो एग्जांपल में ही देयर इज लॉट ऑफ टेबल्स, लॉट ऑफ नंबर्स। तो जब स्टूडेंट ये देखता है ना तो सोचता है अरे इतना सब कुछ है, इतना कुछ हो रहा है। तो एग्जाम में कैसे टेस्टिंग हो रही है? मतलब कहाँ पे वो लोग चेक करने की कोशिश करते हैं जनरली? एग्जाम में दे टेस्ट यू अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, इवन जो सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, तो हाउ डज रीइंफोर्समेंट लर्निंग फंक्शन, ना कि आप हाउ डज इट फंक्शन, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट, हाउ इज इट वर्किंग। आपको अगर वो वर्किंग और अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड इफ यू आर नोइंग प्रॉपरली, आपको आंसर आ जाएगा, rather than आपको उसका nuances आने चाहिए। That is not the reason. You should have the concept clear कि how semi supervised learning, supervised learning, reinforcement learning, these are working in the background. If you know that, समझा। you'll be able to clear. Like, ओके। और आपने अभी अप्रैल में एग्जाम क्लियर किया, तो आपने पढ़ाई कब स्टार्ट की थी? सर मैं जनवरी एंड में स्टार्ट किया था। मतलब प्रॉपर पढ़ाई बोल रहे हो आप? हाँ, प्रॉपर पढ़ाई। उससे पहले मैंने सिलेबस देखा था, लेकिन आई स्टार्टेड जनवरी 15 और 16, मिड जनवरी में स्टार्ट किया। तो वहां से लेके फिर आपका एक बार रीडिंग कब कंप्लीट हो? ना आपको फुल आपने पूरा पढ़ लिया कि चलो यार मुझे ये एक बार हो चुका है मेरा, ऐसा? मेरा मोटा 40 डेज, 30 से 40 दिन में मैंने एक बार पूरा करिकुलर आपका जो पेपर है एक बार पढ़ लिया था। आफ्टर वन रीडिंग यू गेट टू नो दैट इज लास्ट 2 चैप्टर्स आर कम्प्लीटली थियरी बेस्ड। मेरा ये प्रॉब्लम है, थियरी इफ आई डोंट रीड 3 or 4 टाइम्स आई डोंट एबल टू रिकॉल इन द एग्जाम्स। तो मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट जो वाला जो पार्ट है वो उसके साथ साथ लास्ट लास्ट का 2 चैप्टर है वो आई साइमल्टेनियसली स्टार्टेड रीडिंग again and again, so that both I started. It's like I bifurcated those two part in 2 modules. Last fourth and fifth chapter I started reading again and again because I knew it's theory driven, heavily theory. I'll have to I don't I'll not be able to recall if I don't study it again and again. So ओके। ओके, इंटरेस्टिंग। तो मतलब लगभग 40 डेज में आपने 10 चैप्टर, 10 भी नहीं एक्चुअली 14 चैप्टर्स है मॉड्यूल्स को अगर आप काउंट करो तो वो आपने पूरा खत्म कर दिया था। आपने गार्प का सैंपल पेपर दिया था बिफोर गोइंग टू द एग्जाम? 80 था कि 40 था? there were 40 questions. और क्या स्कोर आया आपका? 40 क्वेश्चंस था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। आई थिंक आई हैड 24 और 25 है। तो उससे कॉन्फिडेंस लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा एग्जाम? हाँ, उससे मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा। ओके। और जब आप एग्जाम के दिन गए, ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, आपने स्टार्ट किया सॉल्विंग, ओके, तो जो एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल था, ओके, पहले तो गार्प सैंपल पेपर के लेवल से कंपैरेटिवली क्या उसके ऊपर था? इन टर्म्स ऑफ द साइज, इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी कैसा था? In terms of the size and difficulty, both, it is at par with the GARP sample paper. It is the difficulty and size, it is at par with the GARP sample paper. A few questions are a bit more lengthy, but mostly it is at par and standards are at par with the GARP sample papers. ओके। और 80 क्वेश्चंस करने के लिए 4 आवर्स, ये जो टाइम है, ये सफिशिएंट लगा आपको? कब तक आपका हो गया सब कुछ सॉल्व करके? More than sufficient. मेरा 2.5 hours में हो गया। ओके। और फिर आपने कुछ देखा, रिवाइज किया कि कौन सा फ्लैग किया है, क्या किया कि 2.5 आवर में सब खत्म ही हो गया? 2.5 hours में खत्म हो गया। आई थिंक 2 hour 50 minutes में मैंने सबमिट कर दिया। वाओ! ओके। ओके। और बहुत ज्यादा मतलब जो क्लासिक गार्प का एक स्ट्रक्चर होता है कि वो लोग ऑप्शंस को बहुत क्लोज डालते हैं, तो ये चीज आपको हुआ था कि मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ा इन द व्हाइल इन द एक्चुअल एग्जाम? दैट इज देयर सर, वो तो रहा। ऑप्शंस 2 options आर ऑलवेज क्लोज। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप एलिमिनेट करके यू कैन ऑलवेज अप्लाई योर कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमिनेट ऑप्शंस एंड मार्क द राइट आंसर, तो कर सकते हैं। बट इफ आई कंपेयर विथ एफआरएम और एनी अदर गाप एग्जाम, द क्वेश्चंस आर वेरी लेंथी। इन दिस केस द क्वेश्चंस आर नॉट दैट लेंथी। ओके। बट करिकुलम वाइज, बिकॉज़ अभी आप एफआरएम पढ़ रहे हो ना, तो करिकुलम वाइज हाँ कैसा हाँ, लग इट्स रहा है आपको? हाँ, करिकुलम इजी? वाइज ऑल्सो
curriculum wise, it is nowhere near to FRM. Nowhere. ओके ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। एंड ओवरऑल आपने पूरे जर्नी में कितने बार जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल को कितने बार आपने पढ़ लिया रहेगा एंड टू एंड? सर मैंने 3 times पढ़ा है पूरा materials. I have gone through 3 times. First initially I was very slow completing. 30-40 days में मैंने खत्म किया. देन मैंने 15 डेज में खत्म किया. लास्ट 5 मैंने जो मार्क करके रखा था, ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आई वेंट थ्रू दैट ओनली बिफोर द एग्जाम्स. एंड वो मैंने 5 दिन में खत्म कर दिया. So it was just before the exams. I completed in 5 entire curriculum. I completed in 5 days. The mark portions. अगर मैं आपको बोलूं कि कोई आप अगर 3 टिप्स दे सकते हैं ऑन हाउ यू क्लियर्ड द एग्जाम, मैं एक ही टिप दूंगा which will be very useful, will be going for the exams. If you are studying the last 2 chapters, you start simultaneously with the because it has nothing to do with the initial chapters, because these are complete theory and these are mainly data and governance based. So simultaneously you can start the last 2 chapters along with the technical part, so that because the exams will be almost 30 to 40% questions will be from those 2 chapters. So what you can do, if you recall those at the time of the exam, you'll be in better position to clear the exams. From the day one, or at least from the day one, you start studying both the technical portion as well as theory portion, so that you grasp both the concepts. करेक्ट करेक्ट, क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपने भी बोला अभी, बट के जो मिडिल मॉड्यूल है व्हिच इज मॉड्यूल नंबर 2 व्हिच कवर्स रफली अराउंड 25 टू 35% ऑफ द क्वेश्चंस, बट जब अगर आप मॉड्यूल नंबर 3 4 एंड 5 को देखोगे ना, उनका रेंज है 15 टू 25%। तो अगर आप वो तीनों को भी कवर करते हो तो ऑलमोस्ट 40% 45% ऑफ द एग्जाम का टॉपिक क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हो। यस सर, Perfect. So wonderful. I mean, Rajdeep, and this conversation will be really helpful because ये नया एग्जाम है, तो जब बहुत लोग आके इसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे कि एग्जाम में क्या हो रहा है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं इस एग्जाम को, उनके लिए इजी होगा, उनके लिए प्रेप करना इजी होगा, गेस करना कि एग्जाम में क्या आ सकता है इजी होगा, एंड एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टुडे, बिकॉज आपकी जो जर्नी है, बिकॉज एक बैंकर होके आपने अपने जॉब के साथ लाइक हर रोज 1.5 घंटा आपने टाइम दिया, साथ में क्लियर किया। I think so. This will really motivate a lot of other bankers and financial students to come and give this exam. So thank you again, Rajdeep, for taking out time. it was great talking to you, sir. Thank you.